آپ کو بتائیں کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں شدید مندی ہے۔ ایک ہی دن میں 100 انڈیکس میں 2200 پوائنٹ سے زائد کمی ہو گئی ہے۔ انڈیکس 60,674 کی سطح تک گر گیا ہے۔ شیئرز کی قیمت کم ہونے سے سرمایہ کاروں کو 300 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہو گیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہے جانیں گے اشرف خان سے، جو اشرف بتائے گا کہ شدید مندی دیکھی جا رہی ہے مسلسل۔ جی دیکھا جائے عام انتخابات کے بعد کاروبار کا دوسرا سیشن ایک جمعے کو ہوا تھا اور ایک آج پیر کو ہو رہا ہے اور اس میں شدید مندی دیکھی جا رہی ہے۔ کاروبار کے دوران 2270 پوائنٹ کی اب تک کمی ہوئی اور 100 انڈیکس جو ہے 61,000 کی سطح سے بھی نیچے آ گئے۔ اس وقت 100 انڈیکس جو ہے 60,674 کی سطح پہ ٹریڈ کر رہا ہے اور یہاں پہ کنسرن دیکھا جائے جو شیئرز کی قیمت کم ہوئی ہے تو سرمایہ کاروں کو جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے حساب سے 300 ارب سے زائد کا نقصان ہو گیا۔ کنسرن دیکھے جا رہے ہیں کہ دو کاروباری سیشن میں تقریباً 3,400 پوائنٹ کی جو ہے کمی ہو چکی ہے۔ ایک جمعے کو 1200 پوائنٹ کی ہوئی تھی، ابھی جو ہے 2270 پوائنٹ کی کمی ہوئی، تو مجموعی طور پر دیکھا جائے 3400 پوائنٹ کی بڑی کمی ہو گئی ہے اور سرمایہ کار محتاط ہوئے ہیں کیونکہ کسی بھی پارٹی کو اگر جیسے اب الیکشن کے بعد جو حکومت بننے جا رہی ہے تو اس میں جو مشکلات ہو رہی ہیں اس کے بعد کنسرنز دیکھے جا رہے ہیں اور کس طریقے سے آگے بڑھیں گے کیونکہ اب آگے چل کے بجٹ بھی بنانا ہے۔ جو کنسرنز ہیں مالی مشکلات کا بھی پاکستان کو سامنا ہے اور ساتھ ہی IMF کی جو شرائط ہیں وہ مزید سخت ہونے جا رہی ہیں، گیس کی اور بجلی کی قیمت مزید بڑھنے جا رہی ہے۔ یہ تمام خدشات ہیں جس پہ سرمایہ کار جو ہیں محتاط نظر آ رہے ہیں اور شیئرز کو فروخت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسٹاک مارکیٹ میں جو لسٹڈ جو کمپنیز ہیں، آئل اینڈ گیس سیکٹر ہے، انرجی سیکٹر ہے، بینکنگ سیکٹر ہے، آٹو موبائل سیکٹر ہے، سیمنٹ سیکٹر ہے، فرٹیلائزر سیکٹر ہے، کیمیکل سیکٹر ہے اور تمام بینک کمرشل بینکس ہیں، اس میں شدید مندی دیکھی جا رہی ہے۔ ہر سیکٹر میں دیکھا جائے سرمایہ کار جو ہیں شیئر فروخت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس کی بنیادی وجہ ہے کہ 2200 سے زائد پوائنٹ کی کمی ہو گئی ہے۔ اور دیکھا جائے اسٹاک ایکسچینج میں اس وقت جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے، ایک پوائنٹ اگر گرتا ہے تو تقریباً 15.5 سے 16 کروڑ روپے بنتے ہیں اور مارکیٹ میں تقریباً 2200 سے زائد پوائنٹ کی کمی ہو گئی اور معاشی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اس سے مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں 300 ارب سے زائد کا نقصان ہو گیا۔ سرمایہ کاروں کو جو شیئرز کی قیمت تھی اس میں بڑی کمی دیکھی جا رہی ہے اور مارکیٹ کیپ انڈر لاک جسے کہتے ہیں کہ 5% پہ جا کے اگر مارکیٹ ہٹ کرتی ہے تو اس وقت مارکیٹ میں بتاؤں کہ کرنٹ جو ہے 3.7% کی ایک دن میں کمی ہو گئی اور ایک دن میں اگر 3% مطلب 5% کے قریب کمی ہوتی ہے وہ مارکیٹ میں لاک لگ جاتا ہے۔ مارکیٹ میں بند ہونے میں تقریباً جو کہا جا رہا ہے تھوڑا سا وقت رہ گیا اور اس دوران جو ہے شدید جو ہے ابھی بھی مندی دیکھی جا رہی ہے اور ریکوری ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ جمعے کو جب دیکھا گیا تھا کہ وہاں پہ بھی 2100 پوائنٹ کی کمی ہوئی تھی لیکن اس کے بعد ریکوری ہوئی تھی اور 1200 پوائنٹ کمی رہ گئی تھی اور یہاں پہ ابھی جو دیکھا جا رہا ہے جو مسلسل جو مندی ہوئی ہے 2200 سے زائد کمی ہوگی لیکن مارکیٹ میں ریکوری نہیں دیکھی جا رہی ہے۔ سرمایہ کار محتاط ہوئے ہیں اور اس لیے سائیڈ لائن ہو کے شیئرز کو فروخت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ جی اشرف یہ بھی بتائے گا کہ ابھی تو حکومت سازی پر بات چیت چل رہی ہے، تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ جب حکومت آ جائے گی تو اس کے بعد کیا سرمایہ کار جو ہیں وہ شیئرز خریدیں گے؟ بہتری متوقع ہے اس حوالے سے؟ جی یہاں پہ جو معاشی ماہرین نے آج اسٹاک ایکسچینج میں جو اپڈیٹ دیا ہے وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ جیسی حکومت ہوتی ہے اور یہاں پہ حکومت بننے کے بعد کن کن کو کون سا پورٹ فولیو ملتا ہے تو مارکیٹ اس کے بعد اسٹیبل ہو جائے گی اور یہاں جو مارکیٹ میں جو سرمایہ کار ہیں جو سیاسی بے یقینی کی کیفیت ہے الیکشن کے بعد اس کو ختم ہو جانا چاہیے تھا لیکن اب جو یہاں پہ جو ووٹنگ کے بعد جو یہاں پہ پارٹی پوزیشن آئی ہے تو اس پہ کنسرن دیکھے جا رہے ہیں کیونکہ کسی بھی ایک پارٹی کو جو ہے ایک وہ حکومت بنانے کو نہیں ہے، وہ آ کے مخلوق حکومت بنائے گی، ان کے اپنے شرائط ہیں اس کو وہ فوکس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے شیئرز کو فروخت کر رہے ہیں اور سرمایہ کار بھی یہی کہہ رہے ہیں جب حکومت کا اعلان ہو جائے گا اور حکومت بن جائے گی تو اس کے بعد مارکیٹ میں اسٹیبلٹی آ سکتی ہے۔ جی اشرف یہ بھی بتائے گا کہ جو صورتحال چل رہی ہے مارکیٹ کی اس کا سب سے زیادہ اثر جو ہے کس سیکٹر پر ہوگا؟ جی یہاں پہ دیکھا جائے اس وقت جو تمام سیکٹر کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوکس اگر کیا جائے اسٹاک ایکسچینج میں جو پورٹ فولیو ہے اور یہاں پہ پورٹ فولیو میں آئل اینڈ گیس سیکٹر بہت زیادہ امپورٹنٹ بڑی سرمایہ کاری کی مائنز اینڈ منرل کا سیکٹر ہے، وہاں پہ بھی بڑی سرمایہ کاری کی بات ہو رہی تھی۔ اب یہ سرمایہ کاری کب ہوگی؟ جب حکومت منتخب ہو جائے گی، حکومت میں آ کے وزیر اعظم اور سیٹ اپ پورا بیٹھ جائے گا، وفاقی وزراء آ جائیں گے تو اس کے بعد حکومت اب اگلی جو بات ہے یعنی کہ جو انویسٹمنٹ ہے اس کے بعد فوکس کرے گی تو اس کے اوپر جو پلان ہے کیونکہ یہ جو نئی حکومت آئے گی اس کو آتے ہی فوری طور پر بجٹ بنانا ہوگا اور اگلے مالی سال کے بجٹ کے لیے فوکس کرنا ہوگا۔ یہ تمام جو ہے اس کو سرمایہ کار جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے محتاط ہوئے ہیں اور بڑے پیمانے پر جو ہے اسٹاک ایکسچینج میں جو فروخت دیکھی جا رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت کو بنانے میں جو جتنی تاخیر ہوگی اس کی وجہ سے سرمایہ کار مزید محتاط ہوتے دکھائی دیں گے۔ جتنی تاخیر ہوگی حکومت بننے میں اتنے سرمایہ کار مزید محتاط ہوتے دکھائی دیں گے۔ اشرف خان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔
खैरात की सीट नहीं चाहते। हाफिज नईम रहमान ने अपनी जीती हुई सूबाई असम्बली की सीट छोड़ने का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इलेक्शन का फॉरेंसिक ऑडिट कराने का मुतालबा कर दिया है। मजीद जाने के ताहा मालिक की रिपोर्ट। जमात इस्लामी ने इलेक्शन के नताइज मानने से इनकार कर दिया। हाफिज नईम ने अपनी जीती हुई सिंध असम्बली की नशिस्त छोड़ दी। वाजे किया कि फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी किए जाएं। इदारा नूर हक में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची बोले, PS 129 पर आजाद उम्मीदवार जीता है, लिहाजा खैरात की सीट नहीं चाहिए, अपनी सीट वापस करता हूँ। लोगों ने किसी को भी वोट दिया है तो हम उसका एहतराम करते हैं, और मेरी ये सीट, ये इलेक्शन कमीशन के मुंह पर एक तमाचा भी है। हमें नहीं चाहिए खैरात की ये सीट, हमें हमारा हक दो। जो जीते हैं उनको जिताओ, जो हारे हैं उनको हराओ, जो एक एक सीट पे 3-3 हजार 4-4 हजार वोट लिए हुए हैं उनको आकर मुसल्लत कर दो, और देख लो कि वो क्या तमाशा कर रहे हैं। कल देख लो कितनी फायरिंग उन्होंने की है। हाफिज नईम रहमान का कहना था कि MQM जायज तरीके से जीतती तो हम कबूल करते। इस मुल्क में इलेक्शन कमीशन आजाद नहीं है, हमें बल्दियाती इंतखाबात से ज्यादा वोट मिले। पूरी कौम के सामने इस बात का इजहार कर रहा हूं, मैं इलेक्शन लड़ रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कैंपेन जोरदार, हमें वोट बहुत मिले। हमें दोनों NA की सीटों के ऊपर 50-50 हजार के करीब वोट मिले अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा नैरेटिव सेल हुआ, हमें बल्दियाती इंतखाब से ज़्यादा लोगों ने वोट दिए। कराची के लिए आज भी निजात दहिंदा जमात इस्लामी को लोग समझते हैं, लेकिन एक नेशनल फिजा में PTI को भी ज़्यादा वोट मिले। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि इस इंतखाबात में बदतरीन धांधली की गई। हाफिज नईम का कहना था कि इलेक्शन कमीशन के फॉर्म 47 के मुताबिक मुझे 26,000 वोट मिले, लेकिन फॉर्म 45 के मुताबिक मुझे 30,000 वोट मिले। तहरीक इंसाफ को ज्यादा वोट मिले हैं, हम इनके मैंडेट को कबूल नहीं करते, हमें तहरीक इंसाफ की जीत को तस्लीम करना चाहिए। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ ताहा मलिक, कराची। सिंध में पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। इस्लामाबाद में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में अहम फैसले मुतवक्के हैं। सिंध में कायद ऐवान का सहरा किसके सर पर सजेगा और स्पीकर का कुरा किसके नाम निकलेगा, ये जानेंगे आज जमाली की। सिंध असेंबली में पार्टी पोजीशन वाजे हो गई। पीपल्स पार्टी ने 3 आजाद अरकान से राब्ता कर लिया। सिंध असेंबली के 168 के ऐवान में पीपल्स पार्टी को खवातीन की 10 और अकलियतों की 6 नशस्तें मिलने का इम्कान है, जिसकी वजह से सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी की कुल निशस्तों की तादाद 110 तक हो सकती है। दूसरी बड़ी पार्टी की पोजीशन MQM पाकिस्तान ने हासिल कर ली है। सूबाई असेंबली की 28 जनरल निशस्तों पर MQM को खवातीन की 6 से 7 और अकलियतों की 3 से 4 निशस्तें मिलने का इम्कान है। सिंध असेंबली में कायदे ऐवान के लिए मुराद अली शाह, फरियाल तालपुर और नासिर हुसैन शाह के नामों पर गौर किया जा रहा है, जबकि शर्जील नाम मेमन, सईद गनी और सरदार शाह भी वजीर आला की दौड़ में शामिल हैं। स्पीकर सिंध असेंबली के लिए आगा सिराज दुरानी, निसार खोड़ो और रेहाना लगारी के नामों पर गौर किया जा रहा है। अलबत्ता सिराज दुरानी ने क़यादत से वजारत मांग ली है। हुकूमत साजी के मुतालिक इस्लामाबाद में आज शाम पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के होने वाले इजलास में तमाम फैसले मुतवक्का हैं। आजिज जमाली, कराची। मुस्लिम लीग नून सिंध के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। सूबा सिंध में लीगी क़यादत का पीपल्स पार्टी के खिलाफ कामयाबी हासिल करने का ख्वाब पूरा न हो सका। इस हवाले से मजीद जानेंगे। ताहा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जीता है जी बिल्कुल, देखिए लीगी क़यादत का पीपल्स पार्टी के खिलाफ कामयाबी हासिल करने का सूबा सिंध में जो ख्वाब था वो पूरा ना हो सका है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ की जाने वाली तमाम मनसूबाबंदी जो है वो पूरी तरह नाकाम होती हुई हालिया इंतखाबात में नजर आई है। सूबे भर में एक नशस्त भी हासिल नहीं की है, ना ही कौमी असम्बली की ना ही सूबाई असम्बली की। मुस्लिम लीग नून ने सूबाई असम्बली की 115 और कौमी असम्बली की 61 नशस्तों पर उम्मीदवारों को टिकट दिए थे, लेकिन इनमें से एक उम्मीदवार भी कामयाबी हासिल नहीं कर सका है। मुस्लिम लीग नून के सदर बशीर मेमन के लिए भी कामयाबी एक ख्वाब साबित रही है, जिन्होंने मटियारी सीट से इंतखाबात लड़े थे, जबकि नवाज शरीफ का दौरा से न करने पर सूबाई क़यादत ना कुछ रही है। ये कहना है हमारे आला क़यादत अगर से लाती नताइज आते, ये तमाम जो बातें हैं ये कहने सही लीगी ज़राए की। जी ताहा मलिक हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आम इंतखाबात को 4 रोज गुजर गए, मगर शहर में सियासी वॉल चॉकिंग, झंडे और बैनर्स ताहाल न हटाए जा सके। इस हवाले से मजीद जानेंगे रिजवान अहमद से।
बिल्कुल इलेक्शन 2024 को मुनक्किद हुए 4 रोज़ गुजर चुके हैं और इसके नताइज भी तकरीबन सामने आ चुके हैं। नताइज आने के बाद शहर में माहौल जो है वो थोड़ा सा कशीदा है, एहतजाज और मुजाहरे हो रहे हैं। इसी सिलसिले में जो शहरी हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। उसकी वजह यह है कि शहर में जो इंतखाबात के सिलसिले में वॉल चॉकिंग की गई थी, पैनाफ्लेक्स लगाए गए थे, बैनर्स लगाए गए थे, स्टीमर्स लगाए गए थे, या फिर पोलों पर जो है वो मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के झंडे लगाए गए थे, उनको नहीं हटाया जा सका है, जिसकी वजह से बदस्तूर कशीदगी का माहौल शहर में पाया जाता है। इस सिलसिले में बल्दियाती इंतज़ामिया हो या ज़िली इंतज़ामिया ताहाल किसी किस्म की कोई कार्रवाई होते हुए दिखाई नहीं दे रही। शहरी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बताइएगा, वॉल चॉकिंग है और ये बैनर वगैरह शहर में लगे हुए हैं, क्या इसके जो है आपको इससे तहफ़्फ़ुज़ात है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे बैक साइड पे ये जो रोड चल रहा है, इस पे कितने जो है वो सियासी जो है वो झंडे लगे हुए हैं, बैनर्स लगे हुए हैं, जो भी चीज़ें लगी हुई हैं सारी। अभी इलेक्शन हुए हुए तकरीबन 4 रोज़ गुजर गए हैं, लेकिन अभी भी ये चीज़ें हटाई नहीं गई। इससे क्या माहौल ख़राब हो रहा है, सियासी कशीदगियाँ भी बढ़ रही हैं। इसके अलावा फिर रोड नए बने हुए हैं, रोडों की जो हालत है वो भी ख़राब दिख रही हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें यहाँ से जो है रिमूव होनी चाहिए। एक आम शहरी होने के नाते और दूसरों लोगों को, जो सियासी लोग हैं, उन लोगों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि इन सब चीज़ों को यहाँ से हटाएं, ताकि जो है माहौल साफ़ सुथरा हो जाए। अब इलेक्शन ख़त्म हो गए तो जो कारोबारी मामलात हैं उस पर ध्यान दिया जाए। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि शहर में मईशत का पहिया चलाने के लिए और पुरअमन माहौल के लिए फ़ौरी तौर पर इन बैनर्स को, इन झंडों को, इन पोस्टर्स को और वो तमाम इंतखाबी मटेरियल जो कि शहर में आवेज़ा किया गया है उसको हटाया जाए, ताकि शहर की खूबसूरती को भी बरकरार रखा जा सके। जी। सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इफ्तिखार अहमद शेख का कहना है, मईशत के लिए 5 साला पॉलिसी मुरतब करने की ज़रूरत है ताकि मुल्क की बहरान कैफियत ख़त्म हो। तफसीलात बताएंगे अयाज राना। जी बिल्कुल, जैसे इलेक्शंस अब हो चुके हैं, जहां सबकी नजरें जो हैं वो अब इस तरफ बनी हैं कि कौन सी हुकूमत जो है वो, कौन सी सियासी जमातें मिलके जो है वो हुकूमत बनाएंगे। जिस तरीके से इलेक्शंस के रिजल्ट आए, लगता यही है कि सब कोलिशन गवर्नमेंट बनने जा रही है, लेकिन अब कौन सी जमात आएगी और मईशत के लिए लेने वाले फैसले किसने करने हैं, क्योंकि हमारी मईशत इस वक्त बहुत तकलीफ से गुजर रही है। इस वक्त कराची चैम्बर के सदर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो कैसा देख रहे हैं। इलेक्शंस हो गए सर, पूरी कौम ने निकल के वोट भी डाल दिया, अब क्या लगता है आपको कि कैसी गवर्नमेंट आएगी और उसको क्या चैलेंजेस अब सामने दरपेश है मईशत को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा इलेक्शन मुनक्किद कराने पर भी, और इलेक्शन कमीशन और पूरी सिक्योरिटी एजेंसी ने जितने अच्छे तरीके से इलेक्शन और लोग बाहर निकले और इलेक्शन वोट डाले हैं। जो भी गवर्नमेंट आई है उस हिसाब से तो यूँ लगता है जैसे मखलूत हुकूमत ही बनेगी, लेकिन जो भी हुकूमत बने, हम कराची चैम्बर इस मुंतज़िर थे कि इलेक्शन हो जाए और एक 5 साल के लिए कोई गवर्नमेंट आए, ताकि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज जो है मईशत के लिए लाई जाए। देखिए जी, कराची को पिछले कई सालों से नेगलेक्ट किया जा रहा है। 6-7 साल से तो कराची जो है वो आप जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की मईशत की। एक्सपोर्ट हमारी 54% है, हमारे नेशनल एक्सचेकर में 67% तक शेयर है। उसके बावजूद भी कराची का हाल बुरा हाल है, और उसकी वजह जो थी वो पिछली जो गवर्नमेंटें आई हैं उन्होंने कराची पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दी है। इस साल इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये कराची की बेस पॉलिटिकल पार्टी आई हैं, जीत कर आई हैं। मैं उम्मीद रखता हूं उनसे कि वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर कराची के मसाइल को एक अहमियत देते हुए उनको बेहतर अंदाज से, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर करेंगे और कराची को बेहतर अंदाज से जो भी उसका हक है वो दिया जाएगा। कराची को जो है वो निगलेक्ट किया गया है, लेकिन इस दफा बिजनेस कम्युनिटी उम्मीद रखती है कि आने वाली कोलिशन गवर्नमेंट जो बनने वाली है और यकीनन बिजनेस कम्युनिटी के जो चैलेंजेस हैं उनको दरपेश उसके ऊपर जल्द से जल्द उस पर जो है मईशत के साथ साथ जो है वो उस पर बात करेगी और उसके ऐसे इकदाम लेगी जिसके अंदर कराची चैम्बर और तमाम हुकूमत कोलिशन जो बनने वाली है उनसे साथ मशावरत के साथ वो फैसले करे तो बिजनेस कम्युनिटी को भी काबिल कबूल है। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने इंटर साल अव्वल के मुतासरा तलबा को ग्रेस मार्क्स देने की सिफारिश कर दी है। इंटर साल अव्वल के मुतल्लिका फैकल्टीज़ के तलबा को मज़ामीन में अलहदा ग्रेस मार्क्स दिए जाने की सिफारिश की गई है। ज़राए के मुताबिक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने तलबा के फेल होने का जिम्मेदार इंटर बोर्ड को ठहरा दिया गया है। तलबा के फेल होने की जिम्मेदारी बोर्ड के साथ साथ वज़ारत तालीम सिंध पर भी आयद हो रही है। कमेटी ने तलबा की बड़ी तादाद में फेल होने की सबसे अहम वजह निसाब की तब्दीली कराती है। दरसी किताबों की अदम दस्तयाबी, मार्किंग स्कीम का ताखीर से ऐलान, MCQs कम करने को तलबा के फेल होने की वजह
करार दिया गया है। ग्रेस मार्क्स का तयन निगरान वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर ही किया जाएगा। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 शदीद किल्लत आब का शिकार है, जहां बरसों से पानी की फराहमी मुअत्तल है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे फरहान खान से। बिल्कुल शहर कायद में जो है वो बुनियादी मसाइल जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इस वक्त जो है वो मैं शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 के इलाके के अंदर मौजूद हूँ। इस इलाके की सूरत-ए-हाल अगर आपको मैं बताऊँ तो यहाँ पे जो है वो पानी की किल्लत जो है वो बढ़ती चली जा रही है, जिसके बायस जो इलाका मकीन यहाँ से जो है वो दूर दराज से आके जो है वो यहाँ नलकों से जो है वो पानी बढ़ते हैं। इन नलकों से जो है वो ये पानी भर के जो है वो अपने घरों के लिए लेके जाते हैं, जिससे जो है वो इनके घरों के जो काम वगैरह है, दीगर जो है वो खाना पकाने की ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सकें। इस वक्त जो है कि इलाका मकीन में हमारे मौजूद है, इनसे भी तफसीलात लेते हैं। मुझे बताइएगा सर, कब से इस तरीके से जो है यहाँ से आके दूर दूर से इस तरीके से पानी भर के लेके जाते हैं? भाई हम शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 में रहते हैं, मेन मार्केट के अंदर बाज़ार में। आज 1.5 साल हो गया तकरीबन गटर का पानी, उसमें गटर की लेने मिला दी हैं, पीटीआई ने बनाई थी वो लेने, और आज तक कोई सही करने नहीं आया। हज़ारों दरखास्तें दे दी हैं लेकिन कोई खुदाई करके उसको सही नहीं करता। और मेरे को 1.5 साल हो गए यहाँ से पानी भरते हुए। मैं अपने घर पीने का पानी लेके जाता हूँ और अब उधर बोरिंग का पानी है, इस वजह से हम खारा पानी पीते नहीं है, ख़रीद सकते नहीं है, इसलिए यहाँ नलों पे यहाँ नाले के बराबर में से भर भर के लेके जा रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो इलाका मकीन में हमारा मौजूद है, इनसे भी आपने तफसीलात सुनी। जबकि आप मेरा अखब में भी देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जो है वो इलाका मकीन जो है वो दूर दूर से आके जो है वो अपने घरों के लिए जो है वो इस्तेमाल के लिए जो है वो मीठा पानी जो है वो यहाँ से भर के लेके जाते हैं। इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो मुतादिद बार जो है वो दरख्वास्तें जमा कराई हैं, लेकिन ताहाल जो है वो इनकी जो है वो घरों की लाइनों में पानी नहीं आ रहा। उसमें जो वो गटर का पानी आता है, जिसकी बाइस जो है वो यहाँ पर आके जो है वो मीठा पानी भरने पर जो है वो। हायर एजुकेशन कमीशन और नेशनल बिजनेस एजुकेशन काउंसिल के तहत दो-रोज़ा डीन एंड डायरेक्टर कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे सैयद जुबैर राशिद से। आज बिल्कुल देखें, इस वक्त मेरे साथ बराह रास्त हायर एजुकेशन कमीशन के जो सरबराह है जनाब मुख्तार अहमद साहब जो है इस वक्त मेरे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। इनसे आपकी बात कराते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया। मुझे बताइएगा, आज IBA की कोलैबोरेशन के साथ एक बड़ी खूबसूरत सी एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है, बिलखुसूस इसका क्या मकसद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी एक्रेडिटेशन काउंसिल है बिजनेस एजुकेशन के लिए, नेशनल बिजनेस एजुकेशन एक्रेडिटेशन काउंसिल, और इसने ये पिछले 10-11 साल से ये हर साल एक डीन्स एंड डायरेक्टर कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर बैठ के सारी यूनिवर्सिटियों के लीडरशिप के साथ बैठ के देखते हैं कि इस वक्त क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या मसाइल आ रहे हैं और किस तरह उसको बेहतर किया जा सकता है, दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। उसी हवाले से ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है। और सैलरीज के हवाले से बात करें, कराची यूनिवर्सिटी और वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के मामलात आपके सामने हैं। वहाँ पर एक जानिब असातिज़ा कराम सरापा एहतजाज हैं, जबकि दूसरी जानिब जामिया कराची में स्टूडेंट्स की फीसों में जो है बेशुमार जो है इजाफा कर दिया गया और मलबा जो है यूनिवर्सिटी HEC पे डाल देती है। इसके हवाले से क्या कहें? बात नहीं है। आई होप कि इंशाल्लाह अभी सेनेट की मीटिंग हो रही है, अल्लाह करे को रेगुलर वाइस चांसलर आ जाए और चीज़ें बन जाए। हमारी बड़ी बेहतर एक उर्दू के नाम पे हमने एक यूनिवर्सिटी बनाई थी और उसकी बेहतरी होनी चाहिए, जो बदकिस्मती से नहीं हुई इतने सालों में। 16-17 कितने वाइस चांसलर चेंज हो चुके हैं, उसकी वजह से ये फुकदान रहा है वहाँ क्वालिटी का भी और खासकर गवर्नेंस के बहुत इश्यूज हैं। जब तक वो इशू सेटल नहीं होंगे ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। चेयरमैन HEC जनाब मुख्तार अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ आपको बताएं कि कोरंगी KTA कॉलोनी में सीवरेज का निज़ाम तबाहाली का शिकार है। शहरी शदीद परेशान हैं। अरसे से सड़क पर गंदा पानी जमा, सड़क खस्ताहाल। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे। अक्सर शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। जिक्सा बताएगा क्या सूरत हाल है, क्या कहना है इलाका मकीनों का? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कोरंगी KTA कॉलोनी में मौजूद हूँ। यहाँ जो है वो कोरंगी का कोई नंबर तो लिहाजा नहीं लगता, क्योंकि ये एक आज़ाद कॉलोनी अंदर का इलाका है। और जब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं तो कोरंगी के नंबर जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं 1, 2, 3, 4। लेकिन मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये एक कॉलोनी, और इस वक्त मेरे कैमरामैन आपको मेरा कब में दिखाएं कि जो कराची भर की सूरत हाल है वही जो है वो हमें यहाँ की भी सूरत हाल जो है वो कुछ देखने में नज़र आ रही है। सीवरेज का जो है वो गंदा निज़ाम सड़क पर पड़ा हुआ नज़र आता है। सड़क जो है वो खस्ता हाली को पहुँच गई है। यहाँ पर इलाका मकीनों का ये कहना है कि जो कारोबार है वो बुरे तरीके से ठप होता हुआ जो है वो यहाँ पे इनका कारोबार ठप हो चुका है। गुजरने वाले इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो रिहायशी यहाँ के गुजर रहे हैं। गाड़ियों पे जो है वो झटके हिचकोले खाते हुए यहाँ से जा रहे हैं। बात करते हैं यहाँ के NET के कौन से जो उम्मीदवार हैं जो यहाँ से मैदान में खड़े हुए थे, तो अब तक जो है वो यहाँ पे जिन्होंने काम करवाया वो PTI के रहनुमा थे।
जिन्होंने माजी में यहाँ काम करवाया था। इस हवाले से मज़ीद बात करने के लिए जो है वो यहाँ के रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा, हम ये देख रहे हैं कि आपका जो है वो यहाँ पे बर्गर का ठेला है, तो काम में नुकसान होता है क्योंकि हम देख रहे हैं गंदगी भी यहाँ पर है और गाड़ियाँ बड़ी मुश्किल से गुजर रही हैं। जी बिल्कुल नुकसान हो रहा है काम। लोग ये सोचते होंगे कि इसके यहाँ से गुजरने के बजाय मुतबादिल रास्ता यूज़ करें। जी बिल्कुल। तो आप लोगों ने कभी कंप्लेंट की है? कंप्लेन की, काफ़ी दफ़ा काम हुआ, लेकिन दोबारा से ये ख़राब हो जाता है। किसने काम करवाया? ये PTI ने काम करवाया था अपने दौर में। तो ये बताएं कि अभी जो आम इंतखाबात हुए हैं, आप लोगों ने वोट दिए हैं, तो वहाँ के उम्मीदवार आए थे यहाँ पे काम करवाने? नहीं, वो अभी नहीं आया। कोई भी नहीं आया था इस दफ़ा ना? इलेक्शन से पहले कोई? नहीं। आप यहीं पे रहते हैं? जी जी, मैं यहीं रहता हूँ। मेरा पीछे ही घर है। मैं फिंगर फ्राइज़ यहीं लगाता हूँ, इस गली में लगाता हूँ। बहुत परेशानी है। मेरे दोस्त आते, घूम कर आना पड़ता है उनको बाकायदा। यहाँ से रोज़ाना हर हफ्ते ये मसाइल देखने को मिलते हैं कि गटर भर गए, हर रोज़ाना गटर भर गए, गैस नहीं आती, रात को 10 बजे चली आती है, इतनी परेशानी होती है। यहाँ पर लाइट की इतनी लोड शेडिंग है, कुछ बोल नहीं सकते। अभी वोट हो गए, इलेक्शन हो गए, उसके बाद ये लोग नज़र ही नहीं आएंगे। इलेक्शन से पहले ये गटर खुल गए थे, अभी इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। जो बात है वो सच है कि इलेक्शन के बाद कोई अपने अपने घरों पे चले आते हैं सारे वोट लेके। अब हम किसकी शक्ल देंगे? अभी तो इलेक्शन हुए हैं, 2 रोज़ गुजरे हैं, अभी तो नुमाइंदे जो है वो हल्फ उठाएंगे, फिर अपनी जो है वो जिम्मेदारियों पाएंगे। आपको नहीं लगता कि इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा? टाइम अब मुझे इतनी उम्मीद नहीं है अपने सियासतदानों के ऊपर कि ये। अक्सर शाहिद हमें अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। शहरियों की हुकूमत से बुनियादी सहूलियात की फराहमी की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। कोरंग की 36B में अवाम ने पानी के हुसूल के लिए मोटरसाइकिल और बैटरी का सहारा ले लिया। रिपोर्ट करेंगे एहसन अब्बासी। वाटर कॉरपोरेशन की अदम तवज्जोही शहर में किल्लत आब का सबब बन गई। कराची में पानी की किल्लत बढ़ने लगी। कई इलाकों में वाटर कॉरपोरेशन की सुस्ती ने इस कमी को भरांत बना दिया। कोरंगी 36B के मकीन दूर दराज मकामात से बड़ी जद्दोजहद के बाद पानी हासिल करके जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई पानी की मोटर चलाने के लिए बैटरी लगाता है तो कोई मोटरसाइकिल स्टार्ट करके इसके व्हील की मदद से पानी की मोटर चलाता है और दूर दराज से पानी हासिल करता है। इलाके की पानी की लाइनों में 3 बरस से पानी नहीं आया। इलाका मकीन कहते हैं एक बार फिर बुनियादी सहूलियात की फराहमी की यकीन दहानी पर वोट डाल आए हैं। कई बरस से वाटर कॉरपोरेशन ने कनेक्शन फराहम नहीं किए। अपनी मदद आपके तहत तवील फासले से पानी हासिल कर रहे हैं। आप देखें, ये ट्राली, बैटरी, पानी की मोटर, ये 50-60 हज़ार रुपए के सामान है जो अपनी लोगों ने मेहनत से खरीद के यहाँ लगाते हैं। इधर सारा दिन पानी के इंतजार में बैठते हैं, फिर भी पानी नहीं आता। कभी आ जाता है तो लोग खुश हो जाते हैं, अपने घरों पे इस तरह भर लेते हैं। क्या मोटर लेके आते हैं, बैटरी लेके आते हैं, फिर यहाँ से चलाते हैं और घर पे भी मोटर बैटरी लगाते हैं। 2 मोटर लगती हैं। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि जल्द अज जल्द पानी की लाइनों में पानी फराहम किया जाए। कैमरा टीम के साथ एहसन अब्बासी, सिटी 21। 3 हटी फूल मार्केट में फायरिंग, एक शहरी जाँ बहक हो गया। मसीह जानेंगे अपने नुमाइंदे शाहज़ेब हुसैन से। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त 3 हट्टी पुल के पास जो फूल मंडी है उसमें मौजूद हूँ और दिन दिहाड़े लूट मार का वाक़या पेश आया है और फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हुआ है। मकतूल की शिनाख्त जो है अब तक नहीं की जा सकी। लाश को ज़ाब्ती कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक बताया जाता है कि जो मकतूल है वो कोरंगी का रिहायशी बताया जाता है और जो है इस मंडी में वो फूल लेने के लिए आया था अपनी दुकान के लिए और यहाँ से फ़रार होते जो 2 मुल्ज़िमान थे, मोटरसाइकिल पर सवार थे, उन्होंने जो है फायरिंग करके उसको जो है शदीद ज़ख्मी किया, जो कि दौरान इलाज तोड़ गया। इस वक्त जो है यहाँ पर जो मार्केट की सूरत हाल है, दुकानदार जो है इस वक्त डरे सहमे बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर पहले भी जो है इस तरीके की वारदातें रौनमा हुई हैं और यहाँ पर इस वक्त कोई भी जो है सामने आने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी स्टैंड लेने के लिए जो है यहाँ पर खड़ा मौजूद नहीं है और बताया जाता है कि जो मुतासरा शहरी है उससे 1.5 लाख से ज़ायद की रकम जो है लूटी गई है और एक माह कबल उससे जो है तकरीबन 5 लाख के करीब की जो है रकम लूटी गई थी। ताहम पुलिस की जानिब से जाए वक़्त से शवाहिद जमा किए गए हैं, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार भी यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ से जो है शवाहिद जमा कर रहे हैं। जबकि साथ ही साथ अतराफ़ में CCTV फुटेजेस मौजूद हैं लेकिन वो जो है काम करने से कासिर हैं बताई जाती हैं। जबकि पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि जो मकतूल है उसकी शनाख्त का अमल मुकम्मल करने के बाद मजीद जो है तहकीकात का जो दायरा कार है वो मजीद बढ़ाया जाएगा। जी, डीजल की होशरुबा कीमतें, माल बरदार गाड़ियों का पहिया चलना मुश्किल हो गया। मसीह जानेंगे वसीम इफ्तिखार से।
ट्रांसपोर्ट तंजीमों के लिए हर दौर में जो है वो मुश्किलात रही हैं और बिलखुसूस बात करें डीजल और पेट्रोल की कीमतों के हवाले से तो निगरान हुकूमत की तरफ से 1 फरवरी को डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया था। 2 रुपये इजाफे से डीजल जो है 278 रुपये लीटर हो चुका है, जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट तंजीमें बिलखुसूस ऑयल टैंकर एसोसिएशन है उनको शदीद जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शुएब खान जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के। डीजल की प्राइसेस जितनी एस्केलेशन पिछले 1-1.5-2 साल में हुई है उसके बाद से कारोबार तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। हमारी फ्रेट की कैलकुलेशन जो है वो मंथली 3 ट्रिप्स के ऊपर बेस करती है और अभी क्योंकि अभी तो 3 मंथ में 1 ट्रिप लग रहा है तो वो इस वक्त वायबल भी नहीं है, बड़े नुकसान में काम कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरे मुल्क की इंडस्ट्री का ही बट्टा बैठा हुआ है। जब तक इंडस्ट्री रिवाइव नहीं होगी तो डीजल पेट्रोल की भी खपत नहीं बढ़ेगी और पहिया नहीं चलेगा। डीजल की कीमतें आपकी नज़र में क्या होनी चाहिए? हुकूमत क्या फी लीटर जो है वो डीजल की कीमत मुकर्रर करे? असल में गवर्नमेंट भी इसमें क्या कर सकती है, डीजल तो सारा तकरीबन इंपोर्ट करते हैं ये लोग और इंपोर्ट में उनका है उसकी यही है कि टैक्सेशन ऑलरेडी हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत हायर साइड पे है और वो शायद इनकी IMF की वजह है जिसकी वजह से ये 60 रुपए तो सिर्फ PDL लगाया हुआ है इन्होंने, इसके ऊपर 100 रुपए के करीब तो इसके ऊपर टैक्सेस बन जाते हैं। अगर इस टैक्सेस में कुछ कमी हो जाए तो शायद कुछ प्राइसेस कम हो जाए। बिल्कुल ये थे शुएब खान जिनका मुतालबा है कि हुकूमत जो है बिलखुसूस पेट्रोलियम मसनूआत पे जो आए टैक्सेस हैं उसमें कमी करे और इसके साथ साथ मुल्क में जो माशी तरक्की के लिए ऐसे इक़दाम करें जिससे मईशत का पहिया जो है वो तेज़ी से चल सके और इसी के साथ साथ उसका असर जो है जो ट्रांसपोर्ट तंजीमें बिलखुसूस ऑयल एंड टैंकर्स जो एसोसिएशंस हैं उनकी जो माल बर्दार गाड़ियाँ उस पर भी पड़ेगा ताकि मईशत अगर बेहतरी की जानिब गामज़न होंगी तो यकीनन जो ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का कारोबार है वो भी चलता रहेगा। जी खेल के मैदान से आपको बताएं कि डीजे सिंध स्पोर्ट्स ग्राउंड में इंटर डिस्ट्रिक्ट गर्ल्स क्रिकेट और खो खो टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानेंगे सबा परवेज से। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डीजे सिंध स्पोर्ट्स ग्राउंड में जहाँ पर टीम्स के दरमियान जो है वो गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज, इसके साथ साथ बेनज़ीर भुट्टो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और साथ ही साथ जो है वो दीगर कॉलेजेस के दरमियान जो है वो यहाँ पर मुकाबला किया जा रहा है। इंट्रा डिस्ट्रिक्ट गर्ल्स क्रिकेट और खो खो का मैच किया गया है। यहाँ पर ऑर्गेनाइज़र मौजूद हैं, मैं इनसे मज़ीद तफसील जानते हैं। मुझे बताइएगा ये जो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट गर्ल्स क्रिकेट मैच और इसके साथ ही साथ खो खो का मैच का मुकाबला किया गया है, इस हवाले से मज़ीद तफसील दीजिएगा। ये छठे सिंध गेम्स जो कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हो रहे हैं उसमें इंट्रा डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले हैं क्रिकेट के गर्ल्स के और खो खो के। क्रिकेट में 6 टीम्स हैं, गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज पंजाबी क्लब, गवर्नमेंट डिग्री कॉमर्स एंड इकनॉमिक्स कॉलेज और बेनज़ीर भुट्टो कॉलेज लियारी, इसी तरह हिजरत कॉलोनी है और रौनक इस्लाम गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज हैं। ये कॉलेजेस जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्रिकेट में। खो खो के लिए 2 टीम्स हैं, गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज पंजाबी क्लब और गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज रौनक इस्लाम। बिल्कुल 100 से ज़ायद तलबा ने जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है और साथ ही साथ इनका यही कहना था कि जो लोग गेम्स जो हैं वो पुरानी गेम्स को भूल चुके हैं, उस गेम्स को जो है वो दोबारा आगे लाया जा रहा है। 6 सिंध कॉलेज गेम्स की जानिब से जो है वो ये इंट्रा डिस्ट्रिक्ट गर्ल्स क्रिकेट और खो खो मैच का जो है वो यहाँ पर इनेकाद किया गया है, जहाँ पर 6 टीम्स जो है वो मद्दे मुकाबिल हैं, जिनमें से 4 जो है वो क्रिकेट की टीम्स हैं और 2 टीम्स जो हैं वो खो खो की रखी गई हैं। जी ताल्लुक वाले हिब्रो ग्रुप ने ऑटिज्म में मुब्तला बच्चों के लिए रिपोर्ट तैयार कर लिया है। मसीह जानेंगे आयमा खान से। जी बिल्कुल, देखें हर बच्चा जो है वो दुनिया को अपने अंदाज़ में देखता है और हर बच्चे को जो है वो दुनिया को देखने का अपना एक अंदाज़, अपना एक अलग तरीका होता है। ऐसे ही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि हसास तबीयत के मालिक होते हैं, उन बच्चों को जो है वो एक फेयर होता है जजमेंट का और तो यही वजह है कि वो दूसरों से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। ऐसे भी बच्चे जो ऑटिज़म का शिकार होते हैं उन बच्चों के लिए टीम हैब्रो की जानिब से जो है वो एक ऐसा रोबोट तैयार किया गया है जो उनसे कम्युनिकेट कर सकता है और उनकी जो है वो बातों को सुन भी सकता है और उनसे जो है वो बात करके उनकी जो फेयर ऑफ जजमेंट है उसके बग़ैर जो है वो उनके लिए कारामद साबित हो सकता है। हमारे साथ टीम हैब्रो की मेंबर मरियम मौजूद है, हम इनसे मज़ीद तफसीलात लेते हैं। मरियम, बताइएगा किस तरह से ये वर्क करता है?
टिमटिम बेसिकली उन बच्चों के लिए है जिन्हें बातचीत करने में प्रॉब्लम होती है, सोशलाइज़ करने में प्रॉब्लम होती है। तो टिमटिम बनाने का मकसद ये था कि जो बच्चे बात सही से नहीं कर पाते वो ज़िंदगी की तरफ और सोसाइटी की तरफ वापस आएँ, क्योंकि उन्हें सोसाइटी में सही तरीके से उनकी स्किल्स को वैल्यू नहीं किया जाता। तो टिमटिम बेसिकली उनकी लाइफ स्किल्स को प्रैक्टिस करवाता है, क्लासरूम में कैसे बातें करनी है, अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे बातें करनी है। तो टिमटिम एक तरह का दोस्त है, एक तरह का टीचर है, इमोशनल कोच है। मोटिव क्या था इसको बनाने का और कितने मेंबर्स हैं आप लोग टीम में? हमने जब स्टार्ट किया तो हमारी 5 मेंबर्स की टीम थी हमारी पूरी, और अभी फ़िलहाल टिमटिम पे 4 मेंबर्स काम कर रहे हैं। और इसकी मोटिवेशन ये थी कि ऑटिस्टिक बच्चे या इवन नॉर्मल स्कूल के जो बच्चे हैं, अगर वो डिफरेंट तरीके से लर्न करते हैं, अगर उन्हें एक ही चीज़ को सीखने में टाइम लगता है, तो टिमटिम उन्हें हर चीज़ बहुत पेशेंटली समझाता है, बहुत पेशेंटली सिखाता है। कहना था कि 14 से ज़ायद सेंटर्स में उन्होंने जो है वो इसको मुतारिफ भी करवाया है और 30 बच्चों पे जो है वो इसका एक्सपेरिमेंट भी किया, जिसके रिज़ल्ट जो है वो इन्हें काफ़ी अच्छे नताइज जो है वो इनको सामने आए हैं इनके। जी।